जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 22। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा योगी अपने आत्मा को अनुभव से जानने के बाद आत्मा में तन्मय होकर सदा आत्म सुख में रहता है। इस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा वह कुछ भी लाभ नहीं मानता। उस समय चाहे भारी दुख का पर्वत भी उसके ऊपर क्यों न आ पड़े, परंतु फिर भी उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता। अथवा चाहे उसका शरीर शस्त्रों से छेद डाला जाए और चाहे वह अग्नि में जा पड़े, परंतु फिर भी आत्म तत्व के महासुख में सोया हुआ चित्त जागने का नाम भी नहीं लेता। जब चित्त इस प्रकार आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह शरीर की ओर कभी भूलकर भी नहीं देखता। उसे अलौकिक आत्म सुख प्राप्त हो जाता है और इसलिए वह इस शरीर के सुख दुखों की सब बातें ही भूल जाता है। तन्मयता के अनेक सुंदर उदाहरण सदा ही मिलते रहते हैं। अनेक योगी हुए जिन्होंने समाधि में अपना शरीर वस्त्र की तरह त्याग दिया। एक मुसलमान फकीर की कहानी है कि उसके शरीर में तीर घुस गया। इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी। तीर खींचने की चेष्टा करने जाएं तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती थी। इससे वह तीर भी नहीं खींचा जा सकता था। क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने वाली दवा उस समय थी नहीं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग उस फकीर को जानते थे। वे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, यह फकीर नमाज पढ़ने बैठेगा तब निकाल लेंगे। शाम की नमाज पढ़ने लगा। पल भर में ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर उसके बदन से निकाल लिया गया, तो भी उसे मालूम नहीं हुआ। कैसी सुंदर थी यह नमाज, अल्लाह से मिलाने वाली। Having obtained self-realization, the yogin thinks there is no other gain superior to it, wherein established he is not moved even by heavy sorrow. The self is all blissful, free from delusion and sorrow. The self is all full and self-contained. All the desires are fulfilled when one attains self-realization. That is the reason why Lord Krishna says, there is no other acquisition superior to self-realization. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 6 ശ്ലോകം 22. അങ്ങനെ അനുഭവത്തിലൂടെ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു യോഗി ആത്മാവിൽ ലയിച്ച് എപ്പോഴും ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ തുടരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ സന്തോഷം ലഭിച്ചതിനാൽ അതിൽ കൂടുതലായി മറ്റൊരു പ്രയോജനവും ലാഭകരമായ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം ഗൗനിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കനത്ത ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു പർവ്വതം അവൻ്റെ മേൽ പതിച്ചാലും അവൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥമാകില്ല. അഥവാ ആയുധങ്ങളാൽ ശരീരം തുളച്ചാലും അഥവാ തീയിൽ വീണാലും അപ്പോഴും ആത്മാവിൻ്റെ മഹത്തായ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന മനസ്സ് ഉണരുക പോലുമില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സ് ആത്മാവുമായി ലയിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അബദ്ധവശാൽ പോലും ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവൻ അമാനുഷികമായ ആത്മാനന്ദം നേടുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അവൻ മറക്കുന്നു. ഏകാഗ്രതയുടെ
നിരവധി മനോഹരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നു. സമാധിയിൽ വസ്ത്രം പോലെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ നിരവധി യോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം ഫക്കീറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അമ്പ് തറച്ച കഥയുണ്ട്. ആ അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കി. അമ്പ് വലിച്ചൂരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ അമ്പ് അതുകൊണ്ട് വലിച്ചൂരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ലോറോഫോം പോലെയുള്ള അനസ്തെറ്റിക് മരുന്നുകൾ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫക്കീറിനെ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫക്കീർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇനിയും അമ്പ് പുറത്തെടുക്കരുത്. ഈ ഫക്കീർ ഇപ്പോൾ നമസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ അമ്പ് പുറത്തെടുത്തുകൊള്ളാം. അങ്ങനെ അവൻ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം തുടങ്ങി. ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പ് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ നമസ്കാരം എത്ര മനോഹരമാണെന്ന്. അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 22. असा योगी अनुभवातून आपल्या आत्म्याला जाणून घेतल्यानंतर आत्म्यातच लीन राहतो आणि नेहमीच आध्यात्मिक आनंदात राहतो. हा लाभ मिळाल्यानंतर तो त्यापेक्षा अधिक फायदेशीर काहीही कधीही मानत नाही. त्यावेळी जरी त्याच्यावर मोठ्या दुःखाचा डोंगर कोसळला तरी त्याचे मन कधीही विचलित होत नाही, किंवा जरी त्याचे शरीर शस्त्रांनी भोकसले आणि तो अग्नीत पडला तरी त्याला त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. पण तरीही आत्म्याच्या महान आनंदात झोपलेले मन जागे होण्याचे नावही घेत नाही. जेव्हा मन अशा प्रकारे आत्म्यात विलीन होते तेव्हा ते चुकूनही शरीराकडे पाहत नाही. त्याला अलौकिक आत्मसुख प्राप्त होते. म्हणूनच तो या शरीरातील सर्व सुखदुःख विसरतो. अनुभवाची अनेक सुंदर उदाहरणं आहेत. ध्यानधारणे दरम्यान अनेक योगींनी आपले शरीर कपड्यासारखे सोडलेले आहे. एका मुस्लिम फकीराची गोष्ट आहे. त्याच्या शरीरात एक बाण अडकला होता. त्यामुळे त्याला प्रचंड वेदना होत होत्या. जर त्याने तो बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्या प्रत्येक स्पर्शाने वेदना वाढत होत्या. बाणही बाहेर काढता येत नव्हता. त्यावेळी क्लोरोफॉर्मसारखे भूल देणारे औषधसुद्धा उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे एक मोठी समस्या निर्माण झाली. फकीराला ओळखणारे काही लोक पुढे आले आणि म्हणाले, अजून बाण काढू नकोस. जेव्हा हा फकीर प्रार्थना करायला बसेल तेव्हा आम्ही तो काढू. तो संध्याकाळची नमाज अदा करू लागला. क्षणार्धात त्याचे मन इतके एकाग्र झाले की त्याच्या शरीरातून बाण काढून टाकण्यात आला, तरीही त्याला ते कळले सुद्धा नाही. ही प्रार्थना किती सुंदर होती की त्यांनी त्याला अल्लाशी जोडले. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 22. యం లాధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే. అటువంటి యోగి తన ఆత్మను అనుభవం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆత్మేందు తన్మయుడే సదా ఆత్మసుఖమందే ఉంటాడు. ఈ లాభాన్ని పొందాక మరొక దేన్ని అంతకన్నా మించిన లాభమని అంగీకరించడు. ఆ సమయాన అత్యధికమైన దుఃఖమనే పర్వతం పైన పడినా కూడా అతని చిత్తం ఏమాత్రం విచలితం కాదు. లేదా అతని శరీరము శస్త్రాలచే ఛేదించబడినా కూడా, లేదా అది అగ్నిలో పడిపోయినా కూడా ఆత్మతత్వ మహాసుఖంలో నిద్రపోయిన అతని చిత్తము మేల్కొనదు. చిత్తం ఈ విధంగా ఆత్మతత్వంలో విలీనమైనప్పుడు అతడు పొరపాటును కూడా తన శరీరం వైపు చూడడు. అతనికి అలౌకిక ఆత్మసుఖం లభిస్తుంది.
అందుచేత అతడు ఈ శరీరం యొక్క సుఖదుఖాల సమస్త విషయాలను మర్చిపోతాడు. తన్మయతకు సంబంధించిన అనేక సుందర ఉదాహరణలు సదా లభిస్తూనే ఉంటాయి. ఇందులో సమాధిలో తన శరీరాన్ని వస్త్రం వలె త్యజించిన అనేక మంది యోగులు ఉన్నారు. ఒక ముసల్మాన్ ఫకీర్ కథ ఏమంటే, ఆయన శరీరంలో బాణం గుచ్చుకుంది. దాని చేతనికి ఎంతో బాధ కలుగుతున్నది. బాణాలలాగే ప్రయత్నం చేస్తుంటే చేయి తగలగానే బాధ మరింత అధికమవుతున్నది. అందుచేత ఆ బాణం ప్రకటించబడుకున్నది. క్లోరోఫారం వంటి మత్తునిచ్చే మందులు ఆ సమయంలో లేవు. పెద్ద సమస్య ఎదురైంది. కొంతమంది ఆ ఫకీర్ గురించి తెలిసిన వారు ఉన్నారు. వారు ముందుకు వచ్చి, బాణాన్ని ఇప్పుడు లాగవద్దు, ఆ ఫకీర్ నమాజ్ చేసేందుకు కూర్చుంటాడు, అప్పుడు తీయవచ్చని చెప్పారు. సాయంకాలం నమాజ్ చేసే సమయం అయింది. ఫకీర్ నమాజ్ చదవడం ప్రారంభించాడు. క్షణంలో చిత్తం ఎంత ఏకాగ్రత చెందిందనగా, బాణాన్ని అతని శరీరం నుండి తీసివేసినా కూడా అతనికి తెలియలేదు. ఎంత సుందరమైన నమాజు, ప్రార్థన! అల్లాతో అంటే భగవంతుడితో అనుసంధానం చేసేది ఇదే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचार्यते। एहन योगी अपन आत्मा के अपन अनुभव से जान कर आत्मा में तन्मय भक सदा आत्म सुख में वास करे तेज। ई लाभ प्राप्त कैला पर ऐसा बढ़ कर आर कोनो लाभ ओ नहीं माने तेज। ओई काल में जो ओकरा पर कोनो भारी दुख के पहाड़ों टूट पड़ा, तैयो ओकर चित्त कखनो विचलित नहीं होते। वा जो ओकर शरीर के शस्त्र सब से छलनी क देल जाए, आ चाहे वो अग्नि में पड़ जाए, तैयो आत्म तत्व के महासुख में सूतल चित्त जाग के नाम नहीं लेते। जखन चित्त ए प्रकार आत्म तत्व में विलीन भ जाते, तखन ओ शरीर दिस बिसरियो को नहीं ताकते। ओकरा अलौकिक आत्म सुख प्राप्त भ जाइत अछि। एहि कारणे ओ एहि शरीर के सुख दुख के सब गप बिसरि जाइत अछि। तन्मयता के कैक रंग के सुंदर उदाहरण सब भेटैत रहैत अछि। एहनो योगी भेल छथि जे समाधि में अपन शरीर के पुरान वस्त्र जकाँ त्याग देलखिन। एकटा मुसलमान फकीर के खिस्सा अछि। हुनकर देह में तीर ढुकि गेल छल आ हुनका बड़ दुखाइत छल। तीर खिंचबाक चेष्टा करते देरी कष्ट आरो बढ़ जाइत छल। एहि कारणे तीर निकालल नहीं जा सकैत छल। ताई दिन में क्लोरोफॉर्म जकाँ बेहोश करऽ वाला औषधियो उपलब्ध नहीं छल। बड़ समस्या के गप भ गेल। किछ लोक ओहि फकीर के जानैत छल। ओ सब आगू आबि कऽ कहलक, एखन ई तीर नहीं निकालू, ई फकीर जखन नमाज पढ़ऽ बैसत तखन निकालि लेब। फकीर जखन साँझ के नमाज पढ़ऽ लगलखिन त कनिके काल में हुनकर चित्त एतेक एकाग्र भ गेल जे तीर हुनकर देह से निकालि लेल गेल, तैयो हुनका किछ बुझायल नहीं। कतेक सुंदर छल ई नमाज, अल्लाह से भेंट करबाबऽ वाला। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।